And in Pakistan, there seems to be no end to atrocities on minorities. This story being reported from Pakistan, where a Hindu girl was kidnapped, forced to convert. Urmila was kidnapped, and despite her family filing an FIR in Pakistan on 24th of December, no action has been initiated whatsoever. The family is now staging a protest, demanding action, raising their voice. These are details and the pictures that we're getting in from Pakistan of the protests that are being seen there. आज नमस्ते। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट 9 वेस्ट कराची में आज रमीला की पेशी थी और उसके वकील की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC, जिसको अदालत ने रिकॉर्ड किया और उसमें भी कई बातें सामने आई कि उसको तो ना तो कलमे का मतलब पता था, ना ही उसको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज थी और उसने बताया कि हाँ जी मैंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन क्यों कि उसकी एज जो है वो खुद बता रही थी 20 साल, लेकिन हमारे पास जो सबूत थे उसके मुताबिक उसकी एज जो थी वो 14-15 साल या 13 साल की थी, तो जिसकी वजह से अदालत ने उसको लड़की को शेल्टर होम में भेजा है और उसको कस्टडी में लेकर शेल्टर होम में भेजा और उसके बाद और IO से कहा है कि इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो कराया जाए ताकि ये पता चले कि उसकी एज कितनी है। हमने नादरा का सर्टिफिकेट भी पेश किया है और हमें उम्मीद है कि अदालत हमें इंसाफ देगी और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मसला हल होगा। बहुत अच्छी बात है। अरबाज मीर हो चाहे कोई भी मिलिटेंट हो, उनको सबको एक जैसा ही कंसिडर करना चाहिए। जल्दी से जल्दी इनको पकड़ के तो इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए ताकि कोई और रजनीवाला का ये मार ना सके, कोई और फैमिली जो है बर्बाद। Okay, we'll just correct that. We're getting in more reactions. We'll go across to Gursimran now. Gursimran joining us with the details of this incident. Gursimran, more and more cases being reported. Is there a number of how many such incidents have been reported from Pakistan in the last 1 year? Niranjan, we have seen that there have been n number of incidents that have been reported. If we speak of last 2 weeks, there have been 3 incidents, including this one, where the atrocities have been committed upon the minority community. First, it was that how a lady from the minority, the Hindu community, she was brutally killed, followed by another incident where a married woman was taken from her house. She was abducted, and when even forcefully married, when her brother tried to rescue her, her brother was killed, and almost after 3 days, the FIR was registered, and the cop Ubaidullah, who was behind that, he's still at large. And now another incident has come into fore where a Pakistani Hindu girl from Sindh, Urmila, also known as Sonu Maheshwari, she was abducted, and now what the family is saying that she has been sent to Darul Islam. Even the date of birth certificate which they produced before the court after her CRPC 164 statement was recorded, that statement also by her clearly shows that she was not aware what actually the Kalma or Islam is. She was forced to convert to Islam by those people in Pakistan. Arshad is the name of the person who abducted her, married her forcefully, and also converted her. Now she has been sent to Darul Islam, and the family members are saying that there is no one to hear about them. This also shows that the judiciary of the Pakistan, especially from the areas where the minorities are in somewhere exist, they are also partial, and no relief is being given to the minority community. Even after the order from the house of the Chief Minister of Sindh that this girl be recovered from the abductors, there has not been even a single action. And now as we speak, there have been 14 days since the FIR has been registered, but the person Arshad has not been arrested, by though the girl has been sent to Darul Alam, so that in the next hearing then equal opportunity will be given to her abductors to prove that she was not abducted and she has been converted into Islam with her will. Yeah.
Thank you for that, Gursimran, for getting us those deals against minorities. Now, Pakistani Hindus who came to India on a religious visa from Pakistan say that they are scared for their lives amid the rising attacks. So both the stories are linked. This is a report that came in from Rajasthan. Here's a report filed by my correspondent Amardeep. आपने कहा कि भाई राम मंदिर हिंदुस्तान में बनना शुरू हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ गए वहाँ। हाँ, जब से राम मंदिर बना है, हिंदुस्तान में बनना शुरू हुआ है, तब से पाकिस्तान में अत्याचार ज्यादा हिंदुओं पे हो रहा है। वही तहसीब की बात है कि वहाँ मस्जिद गिरा के मंदिर बन रहा है, तो यहाँ हिंदुओं का मंदिर हम क्यों रखें। तो उसी हिसाब में वो कहते हैं कि जब आपने मस्जिद गिरा करके मंदिर बनाना शुरू कर दिया तो हम यहाँ पे मंदिर क्यों रखें। बिल्कुल कहते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई ये बुत परस्ती करते हैं, हम हमारे पाकिस्तान में बुत परस्ती और मंदिर नहीं बनने देंगे। तो वो आपको पता है कि एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बना था, जो वहाँ पे इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने के लिए प्लाट दिया गया था गवर्नमेंट का, वो भी नहीं बनने दिया, उन्होंने दीवारें तोड़ दी जी। तो मतलब कि वहाँ पे हालात तब से और ज्यादा बेकार हो गए जब से यहाँ से राम मंदिर बना। राम मंदिर जैसे बनना जहाँ शुरू हुआ तो वहाँ हालत ज्यादा बिगड़ रही है। हाँ, तहसीब से वो कर रहे कि भाई वहाँ अगर मंदिर कहते हैं वो लोग कि यहाँ के राम मंदिर से वहाँ के हिंदुओं का क्या मतलब। बस वो तो तहसीबाजी करते हैं ना अपना, वो उनका ये होता है कि यहाँ से इनसे हम बदला ले रहे, ये सब हिंदू एक ही है। वहाँ तो पाकिस्तान में हमको गद्दार बोलते हैं ना कि भाई तुम हिंदू गद्दार हो, भारत के एजेंट हो, ये इसी हिसाब से। अच्छा, ये बोलते हैं जी। अच्छा, तो आपने कितना उम्र गुजारा वहाँ। हम पैदा से उधर हुए, पैदा ही वहाँ हुए, तो यहाँ राम मंदिर की परेशानी वहाँ के हिंदुओं को क्यों, क्या कहते हैं। बस ये बोलते हैं उधर मंदिर गिरा, मस्जिद गिरा के मंदिर बनाया, हम इधर मंदिर जो है गिराएंगे, इसीलिए वहाँ मंदिर गिरा दी गई, इसलिए गिरा देते हैं। कितने अमूमन कितने मंदिर गिराए होंगे आपके हिसाब से जो आपके आसपास थे। जी, काफी मंदिर, तकरीबन 10-15 तो अभी ये हाल ही में जो राम मंदिर के बाद गिराए उन्होंने, जिसमें एक पेशावर का है, पेशावर का मंदिर है वो, और जो इस्लामाबाद में नया बन रहा था उसकी दीवारें गिरा दी उन्होंने। उसके बाद जहाँ हाँ रहीम यार खान और मीरपुर नहीं रेहड़की में, सिंध के जो रेहड़की शहर है, वहाँ भी मंदिर तोड़ा है इन्होंने। उसके बाद बाकी छोटे शहरों में तो छोटे छोटे मंदिर तोड़ते रहते हैं दिन भर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, यहाँ राम मंदिर का फैसला आया है, पाकिस्तान में वहाँ मंदिर तोड़ना शुरू कर दिए गए। बिल्कुल तोड़ना शुरू कर दिया वहाँ मंदिर, उसी हिसाब से उनके मतभेद है उनका। तो भाई वहाँ मंदिर बन रहा है, हमारी मस्जिद तोड़ के, तो यहाँ हम मंदिर क्यों रखेंगे। अच्छा, तो कट्टरपंथी सोच के लोग वो प्रताड़ित करने लग गए आप। बिल्कुल कट्टरपंथी वो करते हैं। भारत में उम्मीद किससे। भारत में नरेंद्र मोदी साहब से उम्मीद है, अमित शाह से उम्मीद है हमें, और आदित्य योगीनाथ जो है हमारे ये हिंदू महान लीडर है, और हमको इनसे बड़ी उम्मीद है। अच्छा, और सनातन धर्म के लिए, और हम बिल्कुल धर्म के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तो जाना ही नहीं है, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना है। पाकिस्तान हमारा जीना मरना यहाँ है, जीना मरना यही है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर पाकिस्तान की प्रताड़ना इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के हिंदू अब भारत आते हैं, धार्मिक वीजा पर आते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा पर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाने से इनकार कर देते हैं। इसी तरीके के हालातों में भारत में रहने वाले ये पाक विस्थापितों के घर हैं। मैं जहां पर हूं वहां अभी हाल ही में जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं, वो आप उनकी बस्तियां जो है वो देख सकते हैं। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में इनकी आबरू रोजाना लूटी जा रही थी। यहाँ हिंदुस्तान में उनको इज्जत मिल रही है, यहाँ रोटी मिल रही है, और बस रोटी और इज्जत के लिए ये यहाँ से जाना नहीं चाहते। सरकार पूछती है कि आप वापस क्यों नहीं जाते, तो इनका जवाब ये होता है कि उस नरक में अब वापस मुंह नहीं करेंगे। हालात आप देखेंगे तो तस्वीरों में मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से खजूर के पत्तों से बनी हुई दीवारें हैं। खजूर के पत्तों से ही इनकी ये गुजर बसर चल रही है। ये बर्तन, ये रसोई, यही आंगन और यही सोने का कमरा। ये तमाम वो महिलाएं हैं जिनको पाकिस्तान में सरे राह उठा लिया जाता था, हर चौराहे पे इज्जत लूट ली जाती थी, और छोटी बच्चियों को तो लगातार धर्मांतरण से लेकर के उनकी इज्जत से खिलवाड़ इस तरीके से होता था जैसे कि कोई मदारी खेल दिखा रहा हो। हालात
इनकी और कहानी सुन करके ये समझ में आता है कि पाकिस्तान ये वापस क्यों नहीं जाना चाहते। असल वजह इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की वापसी का ये रुख क्यों नहीं करना चाहते। क्या नाम है आपका? मशरूम। पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? पाकिस्तान धोखाता, हमारी बेटियों के स्कूल नहीं जाना देता है, जाती हुए तो छेड़ता है मुसलमान, इसलिए छोड़ आया हूँ। अच्छा, तो मतलब कि वो कैसे मतलब कि पूरा भीड़ इकट्ठा होकर के आती थी? वो हम लोगों में मंदिर की पूजा करते हैं तो मंदिर तोड़ देता है, ये दादा बोलते हैं तो हमारा ये मारता है हमको लोग, हम लोगों को सारे के। अच्छा, मंदिर जाते हो तो मंदिर तोड़ देते हैं? तोड़ देते हैं, शिव का मंदिर तोड़ दिया, रामे पीर का तोड़ दिया, तोड़ देते, मूर्तियाँ बड़ी बड़ी तोड़ देते, इसलिए हम छोड़ के आया। अच्छा, तो आप मतलब कि आप वापस नहीं जाना चाहते? ना, हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, क्यों वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? बात नहीं है इतने। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि यहाँ अच्छा है? अच्छा है यहाँ। हाँ, आई हम सब लाते सही बैठा है, कौन जाता है? यहाँ डर नहीं लग रहा? ना, डर कौन है, उठे डर है। वहाँ डर लगता है? हाँ, मुसलमान आता है, गालियाँ देता है, हाँ, हम लोग औरतों को भी गालियाँ देता है, इसलिए हमको नहीं जाते उठे। आपका क्या नाम है? नीलू। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान वापस? वहाँ अच्छा नहीं है इसलिए। अच्छा, क्या क्या खराबी है वहाँ पे, क्यों दिक्कत परेशानी क्या है वहाँ? बहुत दिक्कत थी वहाँ, बच्चे पढ़ना चाहते थे तो पढ़ाते नहीं थे, वापस आते थे बेचारे, इसलिए भेदभाव करते थे? हाँ। अच्छा, आप हिंदू हैं इस वजह से? अच्छा, पूजा पाठ करने देते कि नहीं? नहीं करने देते थे वो। नहीं करने पा रहा हूँ क्योंकि सिंध की भाषा में ये बात कर रही हैं और इनका कहने का जो मीन्स है वो यही है कि बच्चियां जब स्कूल जाती थी तो घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी ये पता नहीं होता था, बच्चों को पढ़ाने में भेदभाव होता था, धर्म पहले अगर कोई चेंज कर लेगा तो उसके बाद ही उसको पढ़ाई नसीब होती थी, इस तरीके की सामना इनको करने को मिलता था। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे बात करूंगा। अम्मा, क्या नाम है आपका? सीता। सीता, तो वहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं जाना चाहते वापस? पाकिस्तान में शो था, पाकिस्तान में तो इज्जत तो सही नहीं, पाकिस्तान में इज्जत हो ही तो वहाँ तो इज्जत तो से। अच्छा, यहाँ भारत में इज्जत मिल रही है? हाँ, इज्जत मरे जे, रात ना आवा तो न को डर लागे कोई नो। अच्छा। वही तो माना दी हाथ में तो वही तो हमारे डर लागे। अच्छा, पाकिस्तान में तो रात में भी डर लगता था, यहाँ दिन में और रात में डर नहीं लगता? रात नहीं लागे, दाड़ा ने डर लागे। अच्छा। पाकिस्तान में। हाँ, हाँ। तो क्यों वहाँ दिक्कत परेशानी क्या थी? परेशानी बधी हती, माना अँ कमाई कोई हती ने, पोड़ो छा कमाई। हाँ। हाँ, महिलाओं के साथ क्या होता था वहाँ? हाँ, मेला में माना जोरी माना खणे। हाँ। हाँ, छोकरियों बीदी जोरी खणे। अच्छा, लड़कियों को ले जाते थे? हाँ। ठीक है, तो हालात जो है पाकिस्तान के वो बता रहे हैं, ये वो पाक विस्थापित हैं जो हाल ही में पाकिस्तान से भारत आए हैं और ये वापस पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ रात के अंधेरे में भी इज्जत आबरू जो है वो सेफ है, लेकिन वहाँ भरे बाजार में इज्जत नीलाम होती थी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।